नमामि देवी नर्मदे सर्वते नर्मदे सर्वते। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो भरूच स्पिरिचुअल सीकर्स एंड ओशो लवर ग्रुप की ओर से मैं और निरल सिंह राणा आप सभी पुस्तक प्रेमियों का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में से आप समय निकालकर पुस्तक के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाते हो। हमें बेहद खुशी है कि शॉर्ट टाइम में हम दूसरा पुस्तक रिव्यू कर रहे हैं और आप सब ज्वाइन हो रहे हो। आज का पुस्तक अपने आप में एक अद्भुत है। साइंस और साइलेंस का एक अनोखा समन्वय है। पुस्तक के बारे में तो हम ज्यादा आज के वक्ता से हम सुनेंगे, लेकिन जितना दिलचस्प ये पुस्तक है उतना ही दिलचस्प वो व्यक्तित्व है जो व्यक्तित्व आज इस पुस्तक का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ जा रहे हैं, हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। काफी लोग रिपीटेड है, परिचय आप सबको होगा ही, लेकिन कुछ मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि मिस्टर नितिन टैलर जो एक राजपीपला जैसे शहर से आते हैं और राजपीपला में से उनकी एजुकेशन जर्नी शुरू हुई। ईडीआईटी नडियाद में उन्होंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद बेंगलोर ट्रिपल आईटी से गोल्ड मेडलिस्ट बने वो। उसके बाद यूरोप अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल उन्होंने जॉब किया, बहुत अच्छा एंजॉय किया सब कुछ। एक होनहार युवान को जो करना चाहिए वो सब कुछ किया, लेकिन भारत देश की भूमि और मां नर्मदा की कुछ प्रेरणाएं ऐसी थी जो उन्हें सब कुछ छोड़कर वापस अपने देश, अपने गांव और अपनी मातृभूमि भारत माँ से लेकर मां नर्मदा की गोद में वापस ले आए। एक बहुत अनोखी जर्नी है उनके जीवन की। आप उनसे मिलेंगे, उनसे सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने जैसा है, बहुत कुछ बातें उनके अंदर जो है वो हमारे जीवन में धारण करने जैसी है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे सामने नितिन भाई जी प्रकट हो चुके हैं। नितिन भाई जी आपका बहुत बहुत फिर एक बार स्वागत है। तो फिर सीधे ही पुस्तक रिव्यू पे चलते हैं, शुरू करें आप प्लीज। नर्मदे हर બધા ગુજરાતી હિન્દી કોઈ છે આમાં? કોઈ હિન્દી है? હા મારી થોડી હેબિટ હિન્દીમાં છે એટલે મેં હિન્દીમાં શરૂ કરી દીધું. ના એટલે કોઈ હિન્દી ઓડિયન્સમાં કોઈ હિન્દી છે આમાં? હિન્દી વસ્તી એટલે who don't understand હિન્દી? સોરી ગુજરાતી. શરૂ કરો વાંધો નહીં નિમિતભાઈ. હા હા તો ચાલો હું આપણા જૂના લોકો જ છે એમ તો વધારે એટલે વાંધો નહીં. પહેલું નર્મદા અષ્ટકમ થી ચાલુ કરીશ. થોડું નાનું છે આપણે 4 લાઈન. સબિંદુ સિંધુ શુષ્કલ તરંગ ભંગ રંજિતમ દિશસ્સુ પાપ જાત વાત કારિવારી સંયુતમ એકાંત ભૂત કાલ ભૂત કા દીતિહારી વર્મદે તદીય પાદ પંકજમ નમામિ દેવી નર્મદે. એટલે આ એક નાનકડો શ્લોક પહેલો છે આપણે નર્મદા અષ્ટકમનો, અને એમાં માં નર્મદાનો મહિમા કે નર્મદા માના ચરણ કમલોમાં પ્રણામ કરું છું. નર્મદા એક વહેતી ધારા છે, તે બધાને શાંતિ આપે છે અને ભયમુક્ત કરે છે આપણને. આપણા અંદર જે દ્વેષ છે, ધૃણા છે, પાપ છે એ બધું દૂર કરે છે એના દર્શન માત્રથી. તેવા નર્મદાને આપણે પ્રણામ કરીએ અને એનાથી જ આ શરૂઆત કરીશું. અને બુક પર આવીએ, તત્વમસી બુક એટલે રેવા મૂવી ઘણા લોકોએ જોયું હશે. બુક વિશે ઘણા ઓછા જાણતા હશે, પણ મૂવી ઘણું હિટ થયું હતું અને કદાચ આપણે બેસ્ટ અને નેશનલ ફિલ્મફેર એવોર્ડ પણ મળ્યો છે, જે આ બુકમાંથી આ મૂવી થયું હતું, રેવા મૂવી, જે નર્મદા નદી પર જે આખું થયું હતું. અને ધીરે રહીને પછી આપણે બુકનું જે જોઈએ, ધ્રુવભાઈ ભટ્ટ બહુ સારા લેખક છે, એમાંનું એક ઉત્કૃષ્ટ એમનું આ રચના કહી શકાય જે તત્વમસી છે. એટલે એની માટે પણ એમને સાહિત્ય એકેડેમી પુરસ્કાર મળ્યો હતો આ બુક માટે. એટલે ખૂબ જ સુંદર અને સરસ બુક છે. અને બુકનું હું કહું કે બુક મને ક્યારે, મારા એક મિત્ર હતા 2016ની વાત,
જ્યારે હું યુરોપથી મેં નર્મદા યાત્રા પણ ચાલુ કરી દીધી હતી. અને એ વખતે મારા એક મિત્ર ધ્રુવભાઈ ભટ્ટના મિત્ર મિહિર પાઠક એમનું નામ, અને એ ધ્રુવભાઈ સાથે રહેવા ગયો હતો આણંદમાં. ધ્રુવભાઈ જ્યાં રહે છે એમના ગામ પાસે આણંદમાં, એક્ઝેક્ટ નામ નથી યાદ મને ગામનું. ને એમને કીધું કે એ બુક વાંચી તત્વમસી, તો મિહિરનો મને ફોન આવ્યો કે નીતિનભાઈ તમારા પર બુક લખાઈ છે. તો મેં કીધું કે કેવી બુક? કે તમારા જીવન જેવી જ છે, તમે વાંચજો તો તમને ખ્યાલ આવશે. એ વખતે મેં એ બુક લઈને પછી વાંચી, એટલે ઘણું ખરું મને એમ લાગ્યું કે નર્મદાથી પ્રેરણા લઈને જીવનને બદલાવ લાવવાનું એ આ બુકમાં ખૂબ જ સારી રીતે હું મારી લાઈફને રિલેટ કરી શકતો હતો આ બુક સાથે. ત્યાંથી મને પ્રેરણા થઈ બુક વાંચવાની. આખી બુક વાંચીને પછી રેવા મૂવી આવ્યું તો મને વધારે ગમ્યું, એ બુકમાંથી જે બન્યું હતું. તો આ બુક છે એક એવા યુવકની, નવયુવકની, કે જે હજુ પણ કોઈક ઓડિયન્સમાં આપણે બધા જોઈન થઈ રહ્યા છે. મેં ઘણા લોકોને ફોરવર્ડ કર્યું છે, એટલે કોઈ લેંગ્વેજ બેરિયર હોય તો કોઈ એમાં લખી શકે, હિન્દીમાં એમને જોઈતું હોય તો તમે એકવાર પૂછી શકો એમને. હા, નહીં, લગભગ તો જેટલા નામ છે ને જે જોઈન થાય છે બધા પરિચિત છે મારા. ઓકે, હા તો વાંધો નહીં. હશે તો હું જણાવીશ. હા હા, ઓકે. તો તત્વમસી બુક એક એવા યુવકની છે જે એમ તો ભારતમાં જ જન્મેલો છે, અને એ અમેરિકા પછી આગળ જાય છે ભણવા માટે. અને એના પ્રોફેસર જે હોય છે, રુડોલ્ફ એનું નામ છે, તે એમને નર્મદા નદી પાસે રહેલા આદિવાસી સંસ્કૃતિનું સંશોધન કરવા માટે એને મોકલે છે. આ બુકની શરૂઆત જ બહુ સરસ છે. તમે જો બુક વાંચશો તો એમાં શરૂઆત જે એન્ડ હોય છે ને, શરૂઆત છે કે એક યુવક નર્મદાના કાંઠે પડેલો છે અને એને નર્મદા દર્શન આપે છે. આ ખરેખર શરૂઆત એન્ડ છે, પણ એને શરૂઆત આ બુકની અંદર શરૂઆત આપી છે. અને જે આપણા લેખક છે, ओके कैन वी डू इन हिंदी प्लीज? ओके, हिंदी में ओके। तो हमारे कुछ ऑडियंस हिंदी भी ओके, लैंग्वेज बैरियर है। तो ये जो तत्वमसी बुक है एक युवा की है जो भारत में ही, भारत का है लेकिन अमेरिका में पला बड़ा हुआ है, और वहां पे उसके पढ़ाई कर रहे थे। और वहां से उसके प्रोफेसर ने उसको इंडिया जाने के लिए कहा कि आप इंडिया जाके इसका जो ट्राइबल कल्चर है नर्मदा के पास, उसके ऊपर रिसर्च करो। तो वहां से ये जर्नी शुरू होती है। लेकिन जब आप बुक पढ़ोगे तो बुक में उसका जो एंड है वो पहले दिखाया था कि एक युवा एक नर्मदा के तट पे पड़ा हुआ है, और वहां वो रेवा नर्मदे हर बोल रहा है, उसको नर्मदा दर्शन दे रही है, और वो अपना जो भी बुक डायरी वो सब छोड़ के चला जा रहा है। और अपने जो लेखक है, ऐसा पता है कि ध्रुव भाई ने एक नवल कथा ही है, तो उनको ये डायरी मिलती है, और उस डायरी से पढ़ के वो हमें ये पूरी कहानी बता रहे हैं। तो पूरा बुक ऐसे लिखा गया है कि एक डायरी से वो पढ़ रहे हैं, और डायरी में जैसे उन्होंने देखा तो उनको लगा कि युवा को जानते हैं, लेकिन वो कहाँ कहाँ घुमा है उसके ऊपर पूरा उन्होंने वो डायरी के अंदर विवरण किया हुआ है कि जो युवक था, और युवक का नाम भी नहीं, जो हीरो है उसमें यहाँ पे उसका नाम ही नहीं लिखा, उसका नाम क्या है वो पता ही नहीं। अगर जो मुख्य पात्र है इस बुक का, उसका नाम ही नहीं है, बाकी सबका अलग अलग नाम है, लेकिन उसका नाम नहीं था। तो ध्रुव भाई उसमें बताते कि वो कैसे भारत आया। तो जो पहला चैप्टर है बुक का, उसी में वो यूएस से कैसे भी करके उसके जो प्रोफेसर थे उन्होंने भेजा, और कुछ और लोग को भी सिलेक्ट करने, लेकिन उसका सिलेक्शन हुआ, और वो मुंबई से आ रहा है। मुंबई तक उसका एक दोस्त आया था छोड़ने, और वहां से फिर वो बोला कि चलो भाई अब मैं जाता हूँ। तो नर्मदा जो आता है भरूच के पास जब आते हैं, और भरूच हमारा भरूच के पास ही उसका विवरण दिया हुआ था कि जाडेश्वर ये जो अपना ब्रिज क्रॉस करते हैं तो उसके सामने ट्रेन में एक महिला, एक बड़ी उम्र की महिला बैठे हुए हैं, और वो कुछ डाल रहे हैं अंदर, पैसे डाल के नर्मदे हर बोले। तो उस युवा को, अमेरिकन युवा को ऐसा आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्यों, पैसे क्यों डाल रहे पानी के अंदर। तो उससे उसको लगा कि ये कैसी परंपरा। वो अपने आप को बचपन में जब वो वहां पे जब गया था, जब छोटा था, तो उसकी मेमोरी रिकॉल होती है, और वो देखता है कि लोग कैसे नर्मदा से जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो बोला कि नर्मदा में पैसे फेंकने का तो नहीं, हम उसको माँ मानते हैं, यानी यहाँ पे नर्मदा को एक माँ, प्रकृति को कैसे हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो बताया गया है। फिर वो काफी सारा उसने पहले चैप्टर में दिखाया गया कि रेलवे जर्नी में कैसे अलग अलग धर्म के लोग साथ में बैठ के मिलजुल के जा रहे हैं, तो वो पूरा दिया हुआ है। तो एक देखने जैसा है कि आप जब भी प्रवास करो या ट्रैवल करो, तो आपको स्पेसिफिकली इन द ट्रेन भारत को आपको जानना है, तो एक ट्रेन के अंदर आप जाओगे, आपको काफी अलग अलग कल्चर मिलेगा, तो वो पहले दिखाया गया है। और वहां से फिर जैसे ही भोपाल आता है, तो जो हमारा युवा है, हीरो जो है फिल्म का या अपने बुक का, तो उसको पहुंचना है भोपाल, जहाँ पे ये उनको जाना है रिसर्च के लिए, जो आदिवासी लोग हैं। तो वहां तक, भोपाल तक उसका स्टेशन रहता है, आप फिर आगे जाना है। तो भोपाल पे उसके साथ वाले सब उतर जाते हैं,
और जैसे ही वो बा जो होती है, जो उनके ओल्ड एज लेडी उनके साथ जो बैठी हुई होती है, वो बोलती है कि ओके बेटा मैं जा रही हूँ, माँ नर्मदा तुम्हारी रक्षा करे। तो हंस के वो हीरो बोलता है उनको कि नर्मदा कैसे, नदी कैसे रक्षा करे, नदी तो डुबाती है। तो तब वो काफी सुंदर वाक्य बोलते हैं कि जैसे जिसकी भावना होती है, आपकी जैसी जिसकी भावना की, नदी आपको बचा भी सकती है, डुबा वो आपकी भावना के ऊपर है। तो काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स भी और काफी अच्छे सेंटेंस बुक में लिखे गए हैं, जिससे काफी सारा आपको जानने को मिलेगा कि भारत की जो संस्कृति है, भारत के लोग हैं वो प्रकृति को कितना पूजते हैं, स्पेसिफिकली नर्मदा माँ को। काफी गंगा को भी मानते हैं, लेकिन नर्मदा का एक अलग ही महत्व है, तो उसमें वो दिखाया गया था। फिर जैसे ही वो ट्रेन जहाँ पे जाना होता है, वो ट्राइबल एरिया भोपाल के आगे मध्य प्रदेश का पूरा दिखाया, विवरण दिया हुआ है। तो वहां पे एक लड़की, ट्राइबल लड़की होती है, वो हीरो को गाइड करती है जहाँ जाना होता है। तो उसको भी कुछ नहीं आता, तो अभी वो काफी उसको गाइड करते हैं। और उसमें भाषा भी आप देखोगे तो ट्राइबल भाषा का यूज किया गया है। तो जो भी शब्द है वहां पे, सेंटेंस है, वो ट्राइबल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो हीरो धीरे धीरे वो लड़की के साथ, जो ट्राइबल कम्युनिटी की लड़की होती है, उसको ले जाती है और यहाँ पे जाना होता है। तो वहां पे वो जा रही है। अब वहां पे वो देखता है कि वहां पे लोग आदिवासी है, सब लोग आदिवासी है। और ऐसा दिखाया गया है कि वो अपने आप को अमेरिकन समझता है, कि ये लोग से उनको सुधारना है। उनका जो बेसिकली जो मकसद होता है कि इनके ऊपर रिसर्च करें, उनकी लाइफ को सुधारे। लेकिन जैसे जैसे वो वहां पे रहता है, तो उसको लगता है कि ये लोग ज्यादा मुझसे जानते हैं, उनकी लाइफ और भी एनरिच है, उनके अंदर और भी प्रेम प्यार भावना और भी हमारे से भी ज्यादा है। तो ये बुक से वो भी सीखने को मिलता है हमें कि हम आदिवासी, जनरली जो ट्राइबल एरिया गांव में जाते हैं, तो वहां पे कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन हम लोग वो सब जानते नहीं। यहाँ पे हम ऐसा जानते हैं कि हम शहरों में रह के वी आर वेरी वेल एजुकेटेड, पर स्टिल गाँव में अलग चीज है। तो ये बुक में भी दिखाया गया है। अलग अलग यहाँ पे कैरेक्टर है, जैसे प्रोफेसर रुडोल्फ है, एक सुप्रिया करके लड़की जो होती है, वो पूरा अपना जीवन ट्राइबल्स के लिए जी रही है। तो वहां पे अपने नायक की मुलाकात उनसे होती है, जिसके साथ उसको ये प्रोजेक्ट करना होता है। और वो उसको पूरा दिखाती है कि वो आदिवासी कल्याण केंद्र चला रही है एक छोटे से जगह पे, वहां पे ट्राइबल एरिया में, और वहां पे कैसे रहते हैं। और वहां पे छोटा सा एक आश्रम भी होता है, जहाँ पे वो लोग परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, जो भी नर्मदा परिक्रमा करते हैं। तो एक बार वो जो हीरो वहां पे रह रहा होता है, तो कोई परिक्रमा वासी वहां पे चला जाता है, तो वो बोलता है कि ये कौन है, तो कि नर्मदा परिक्रमा करने आए हैं। लेकिन नर्मदा परिक्रमा, तो पहली बार उसको पता चला कि ये नदी की परिक्रमा लोग करते हैं। तो उसने पूछा प्रश्न, क्यों करते हैं, तो कि उसको पाने के लिए, नदी को पाने के लिए, दर्शन के लिए। तो उसको काफी, यानी क्वेश्चन होता है, ही गॉट सरप्राइज कि ऐसा भी हो सकता है। एक उसके मन में एक प्रश्न होता है कि नदी का ऐसा भी, तो उसको मानने में नहीं आता वो चीज। और फिर धीरे धीरे जैसे वो वहां पे कल्चर में जुड़ता है, वहां देखता है कि लोग नर्मदा परिक्रमा वालों के लिए कितना सारा करते हैं। एक बार वो जो लड़की होती है, सुप्रिया उसका नाम है, जो उसको गाइड करती है वहां पे, तो वो लोग कहीं पे घूमने जा रहे हैं। और वहां पे जा रहे हैं तो एक उनके साथ एक फकीर जैसा बंदा भी, उसका नाम गंडू फकीर है, वो भी एक कैरेक्टर है। अच्छा, वो आपके मूवी में भी, अगर आपने रेवा मूवी देखा हो तो उसमें भी था। तो वो लोग एक आदिवासी के वहां जाते थे, काफी बूढ़ा आदिवासी, गरीब था, कपड़े भी नहीं थे। तो उसको इनवाइट करता है उन लोगों के, आप मेरे वहां खाना है, कि उनको लगा ये नर्मदा के पास आए तो खाना खाना है। तो वहां जाते तो खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। और उसका भाव इतना था कि लोग आए हैं, ये नर्मदा का कुछ कर रहे हैं तो मुझे खिलाना चाहिए, वो उनका भाव रहता है। और वहां पे सिर्फ वो, उनको कुछ भी नहीं होता, तो वो सुप्रिया जो होती है, हीरो होता है, वो बोलता है यार अब कुछ भी नहीं, हम चलो चले जाते हैं, हम लोग कुछ खाना देते कि नहीं नहीं। उसने छोटा सा नमक ले लिया उन्होंने, कि इसकी भावना को नहीं हर्ट नहीं होनी चाहिए, तो नमक ले लेते हैं, छोटा सा नमक। और दूसरा उसके पास महुआ, वहां का जो ट्राइबल वाइन होता है, महुआ होता है, तो वो देता है। तो जो उनके साथ फकीर होता है ना, उसको महुआ, वो बोल रहा है कुछ भी नहीं, मेरे को दे दो। फकीर को खाना बाहर खाना होता है, कोई सुप्रिया ने बोला होता है फकीर को कि मैं आपको घर ले जाके खिलाऊंगी, लेकिन उसने बोला कि नहीं, इस बंदे ने मेरे को ये ऑफर किया तो आई विल ड्रिंक दैट। तो खाली पेट वो महुआ खा जाता है। फिर वो लोग बाहर जाते हैं, वापस उसके घर जाते हैं खाने के, तो खाना नहीं खाता। वो बोला कि अगर मैं अभी खाना खाऊंगा तो इस जो गरीब ने मेरे को दिया है ना, उसका इंसल्ट होगा। तो फिर ऐसे, तो ये भावना दिखाई गई है कि नर्मदा परिक्रमा में लोग कितने भावना, और जो भी परिक्रमा करते हैं उनको ये ऐसे काफी अनुभव होते हैं कि आप आदिवासी ट्राइबल एरियाज में जैसे जाते हैं, तो वहां पे लोग कितने प्रेम और प्यार से, भाव से आपको खिलाते हैं। तो वो भी ये बुक में दिखाया गया है कि एक भावना कैसी है। और यहाँ पे जो जंगल एरिया है, वहाँ का ट्राइबल एरिया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन है कि अलग अलग ऋतुओं में कैसा लगता है, नर्मदा कैसी है, वहाँ की जो
माउंटेन एरिया से वहाँ के मध्य प्रदेश के, उसमें कुछ कुछ वहाँ पे काफी अच्छे तरीके से विवरण, जो आप बुक पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि वो मानसून में कैसा होता है, समर में, रात में, तो पूरे सब विवरण देती है। एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि ये जो अपना नायक होता है वो किसी एक ट्राइबल बंदे के साथ वो जाते हैं, कहीं पे जा रहे होते हैं ट्राइबल एरिया में, और वहां पे रात हो जाती है, और जंगल एरिया होता है, और बाघ बाघ का वहां पे खतरा होता है। तो वो डर जाता है, उसके अंदर एकदम डर आ जाता है जो हमारा हीरो है। लेकिन वो जैसे ही नर्मदा को देखता है तो उसका डर चला जाता है, जैसे नर्मदा को भय हारिनी बोलते हैं, तो वो देख के उसका डर चला जाता है। और उसके बाद जो उसके साथ ट्राइबल होता है वो बोलता है कि बाघ बाघ तो कोई, हम एक उसमें जिंदा सागवान करके एक वृक्ष का उन्होंने वर्णन किया है, ऐसा वृक्ष कि जो इतना बड़ा है कि कभी भी वो सूखता नहीं और सभी को आश्रय देता है, और वहां पे किसी को कोई नहीं आ सकता है, बाघ या कोई भी प्राणी कोई हिंसक हमला नहीं करता। तो वो बताता है कि ऐसा पेड़ भी है। तो हीरो जो होता है वो अमेरिकन सोच से पहले ऐसा सोचता कि ये सब क्या अंधश्रद्धा है, लेकिन जब उसको नर्मदा को देख के उसका भय चला गया, तो उसने बोला कि ये सब चीजें भी हो सकती है। तो धीरे धीरे ये सब चीजों में उसका माइंड कन्वर्ट होता है। जैसे कहानी में आप आगे बढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, तो लगता है कि जो हम जिसको अंधश्रद्धा बोलते हैं, आज भी हम ट्राइबल्स में या ऐसी काफी सारी चीजें होती है, वो बोलते हैं, हमने हमें सिटी वालों को लगता है कि ये क्या है यार, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ से जुड़ी होती है। तो जो नायक होता है धीरे धीरे उनके साथ रह के उनके लोग को और जानने लगता है, और कई बार उसको लगता है कि मैं क्यों उनको सुधारूंगा, मैं कौन होता हूँ इसको शिक्षण देके वो लोग सुधरे हुए है। उनकी लाइफ में काफी सारी चीजें हैं जो हमसे भी ज्यादा वो जानते हैं। तो ऐसे काफी अच्छे चीजें उसमें दिखाई गई है कि संस्कृति, एक वाक्य होता है, एक जब जो नायक कहीं पे गिर जाता है तो उसको चोट लगती है, तो एक मंदिर में लाके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, और शास्त्री शास्त्री जी जो होते हैं वो सब बताते हैं उनको कि आप आदिवासी को सुधारने का प्रयत्न मत, उनकी लाइफ जीवन सुधारोगे तो बहुत है, उसका आदिवासियों को सुधारने का हक हमें है कि नहीं पता नहीं है। और वो एक कन्वर्जेशन में वो भी बताया कि हम लोग, भारत धर्म का देश नहीं है, भारत आध्यात्म का देश है। हमने उसको धार्मिक बना दिया है, लेकिन वर्षों से भारत को जिंदा रखा है उसकी आध्यात्मिकता ने, ना कि धार्मिकता को। और आज हम लोग धार्मिकता को यानी आध्यात्मिकता को छोड़ के धार्मिकता को पकड़ रहे हैं, और हम हमारी संस्कृति को भुला रहे हैं, धर्म के नाम पे हम संस्कृति को मिटा रहे हैं। और ये काफी अच्छी चीज बताइए कि जैसे आप जाओगे ट्राइबल्स में, तो वहां पे जो संस्कृति है वहाँ की, अब धीरे धीरे कम, मैं भी कुछ ट्राइबल्स पे काफी काम करता हूँ, या नर्मदा जिला में भी करता हूँ, तो वहाँ के लोग जो उनकी जो पुरानी रीति रिवाज थे वो धीरे धीरे भूल रहे। तो उसमें शास्त्री जी वो बता रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा डर है कि हमारी संस्कृति खत्म हो गई तो आगे देश नहीं रहेगा। तो हमें धर्म को नहीं, संस्कृति को बचाना है। धर्म तो बचेगा ही, वो अध्यात्म का देश है, पूरा वर्ल्ड से गाइडेंस ले रहा है। तो ये काफी अच्छी चीज उसमें बताई गई है, और कन्वर्जेशन भी काफी सुंदर था। और वो सभी को साइंटिफिक तरीके से बताया कि पुराने जमाने में जब सिंहस्थ होता है, कुछ सिंहस्थ सालों में शादी नहीं होता, बिकॉज उस ईयर में हम कुंभ रखते हैं, लोग वहां पे जाते हैं। जैसे काफी अच्छे अच्छे वर्णन भी किए हैं कि साइंस और डे टू डे लाइफ को कैसे रिलेट करता है ये सब चीजें, कल्चर, हमारी संस्कृति। और एक प्रवास का भी काफी बड़ा महत्व दिखाया गया है कि आप तीर्थ धाम जो कर रहे हैं, तो उसका करने का भी मकसद वही है कि हम कुछ नए जीवन को अलग नजरिए से देखें, अलग अलग प्रांत को बढ़े, तो इसीलिए तीर्थ यात्रा और सब हो रही है। तो उसको भी अच्छी तरीके से बताया गया है। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है तो अपना नायक जो होता है आदिवासियों के साथ काम कर रहा है, उनके साथ, उनके वहाँ हनी जो मध मध होता है, मधुमक्खी केंद्र खोलने का उनका विचार होता है, लेकिन वो भी उनके लिए एक चैलेंज होता है कि आदिवासी में काफी अंधश्रद्धा, इन द सेंस कि वो लोग बोलते हैं कि उसको हम पैक डब्बे में कैसे पूर सकते हैं, मधुमक्खियों को नहीं, उसको मधुमक्खी पालन करना है तो उसको डब्बे में आपको पूरना पड़ेगा। तो उसमें भी काफी अच्छा इंसिडेंट दिखाया था कि वो जो ट्राइबल होते हैं जो काम कर रहे हैं मधु, लेकिन वो भी रिस्पेक्ट करते हैं, मधुमक्खी का भी रिस्पेक्ट है, वो प्रकृति है, तो उसको भी रिस्पेक्ट करके। तो काफी सारी चीजों में दिखाया गया कि जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, ये नर्मदा परिक्रमा की परंपरा को रखने के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, प्रकृति के साथ कितना अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा वो था कि वहां पे जो बिट्टू गंगा करके एक पात्र है, जो दोनों भाई हैं, वो लोग बचपन से ही वहां पे थे, उनके माँ बाप कुछ मर गए थे, तो उनको अलग अलग स्ट्रक्चर वो बनाते, मुनि का डेरा, कुछ भीम तकिया और अलग अलग चीजें यहाँ बैठने के लिए। तो पूछता है कि किसके लिए बना रहे हो, तो उनका मानना है कि कोई मुनि यहाँ पे आएगा परिक्रमा के लिए। तो जो सुप्रिया को वो पूछता है नायक, ये लोग क्यों क्यों बना रहे, कौन, उनको कहाँ से पता कि कोई मुनि यहाँ पे या अश्वत्थामा है या कोई भी आएगा। तो बोल रहा है कि कुछ भी हो कि उनकी भावना काफी प्रबल है। तो हम लोग परिक्रमा वासी की एक काफी अच्छा सेंटेंस है, हम
वो बोलता है कि इतनी सेवा क्यों कर रहे हो आप परिक्रमा वासियों की, तो कि हम परिक्रमा वासियों की सेवा नहीं कर रहे, हम नर्मदा परिक्रमा की सेवा कर रहे हैं। तो नर्मदा परिक्रमा का जो महत्व है, ये परंपरा को टिकाए रखने के लिए हम जो भी आता है, अगर हमें गाली भी दे तो भी हम लोग उसकी सेवा करते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है, उनका एक जो एफर्ट है परिक्रमा को जिंदा रखने के लिए, तो ये पुस्तक में दिखाया गया है। और धीरे धीरे जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, तो उसका जो ये काफी सारा वो रिसर्च कर रहा है, और वो गांव में भी जुड़ता है, काम कर रहा है, उसको कुछ स्कूल खोलनी होती है, वहां पे आग लगती है, तो वो कैसे पूरे आग से वो बचाते हैं लोगों को, नया क्रिएशन करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, तो वो सब भी दिखाया गया है। फिर उसकी जो एक दोस्त गर्लफ्रेंड होती है, जो हीरो है उसकी गर्लफ्रेंड होती है ल्यूसी करके, तो वो वापस इंडिया आना चाहती है, तो उसको बुलाता है। जब इंडिया वो आती है, वहां पे उनके साथ रहती है, तो वो देखती है, तो वो एक बार उसको बोल देती है कि तुम्हें क्या हासिल है हुआ इससे, कुछ रिसर्च करके तुमने कुछ किया ही नहीं ज्यादा। तो उसको, हीरो को लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो उसको दुख होता है कि आई एम डूइंग नथिंग, कि यहाँ पर रिसर्च करके क्या कर लूंगा मैं। तो बोल रही है कि वापस जाने के लिए, तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे रहने दो। लेकिन नर्मदा के साथ उसका जुड़ाव बढ़ गया होता है। तो उसी रात सपने में उसको नर्मदा आती है, वो बोलती है कि नॉर्मल लाइफ तो सब जीते, धन और प्रतिष्ठा के लिए तो लोग जी के, हजारों लाखों लोग वही जी रहे हैं, लेकिन तुम्हारा पथ अलग है, और काफी कम लोग ऐसा जिंदा रह सकते हैं, ऐसी लाइफ जी सकते हैं, तो तुम उसके लिए चुने गए हो। तो वो चीज उसको एक प्रेरणा देती है वापस टिकने के लिए। और अपनी गर्लफ्रेंड को जब बोलता है वो कि मैं, मुझे अपना रास्ता चुनने दो, मुझे कुछ थोड़ा टाइम दो, लेट मी चेक कि मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं, अगर मैं सत्य, अगर सत्य मुझे नहीं मिलेगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, और अगर मिल गया तो वो बोलता है फिर मुझे भूल जाना। तो ऐसा वो जवाब देते हैं। और वहां पे फिर वो लोग उसकी जो दोस्त है उसको लेके भी वो ट्राइबल एरिया में अलग अलग जगह पे ले जाते हैं, दिखाते हैं। और जब वो वापस जा रही है, काफी सारी चीजें हैं जो आप पढ़ोगे, उसमें अलग अलग इंसिडेंट्स मिलेंगे, मैं मेन मेन फ्लो में ही दिखा रहा हूँ। कि लास्ट में जब लूसी बोर्डे कब जाना होता है, उसको वापस रिटर्न अमेरिका होना है, तो उसको सागर संगम देखना था, कि जहाँ नर्मदा सागर के साथ मिल रही है, यानी भरूच के पास। तो उसका फ्लाइट मुंबई पे था, तो हीरो ने बोला कि भाई चलो मैं भी साथ में आऊंगा, और हम भरूच रुक जाएंगे, तो वहां पे सागर संगम देख के मैं तुम्हें वापस रिटर्न छोड़ दूंगा। तो फिर वो लोग आते हैं यहाँ पे, और सागर संगम वो सब देखते हैं यहाँ पे, और काफी अच्छा उनको लगता है। और फिर वो लूसी को वापस वहां पर ट्रेन में बिठा देता है मुंबई के लिए, और ये भोपाल की तरफ जा रहा होता है भरूच से। लेकिन ट्रेन में चढ़ने के पहले उसका बैग चोरी हो जाता है हीरो का, भरूच पे। और फिर वो बोलता है कि क्या करेंगे, तो उसके पास कुछ भी नहीं था, कि अब पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो स्टेशन पे जाता है, तब स्टेशन पे कोई उसको पूछता है कि आप परिक्रमावासी हो, नर्मदा परिक्रमावासी। तो वो हाँ बोलता है, वो परिक्रमा नहीं कर रहा, तो अभी उसने झूठ बोल दिया कि हाँ मैं परिक्रमावासी हूँ। तो स्टेशन मास्टर ने उसको बोला कि चलिए मैं आपको जाड़ेश्वर ले जाता हूँ, यहाँ पे आपको, वो फोन के लिए किसी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे फोन करने दीजिए, वो बोला परिक्रमावासी हो तो आप चलिए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। फिर उसको मंदिर ले जाता है, और फिर वहां पे वो रुकता है। शायद वो मंदिर बताया नहीं, पर जहाँ पे मैं जाता हूँ, वो जाड़ेश्वर मंदिर घाट का वर्णन ऐसे किया गया है। तो वहां पे वो नर्मदा के पास थोड़ा रहता है, और वो सोचता है कि मैं स्टेशन पे भी रुक सकता था, तो यहाँ पे क्यों आया। और फिर उसको वो फकीर की बात याद आती है, कि जो फकीर ने वहां पे उसको पिलाया था, वो गरीब ने उसको पिलाया था, लेकिन फिर उसने खाना नहीं खाया था। उसने बोला कि अगर मैं खाना खा लूंगा तो अपने आप से मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो जैसे इसने ही बोला कि मैंने बोला है कि मैं नर्मदा परिक्रमा वासी हूँ, तो फिर उसको सोच आया कि मैं ऐसा हो तो यहाँ से अब वापस भोपाल चल के जाऊंगा नर्मदा तट से। तो उसी रात उसको, यानी ऐसा विचार आ जाता है कि नाउ आई विल वॉक अलोंग द नर्मदा टिल माई, जहाँ पे रुकना है उसको, भोपाल जहाँ पे जाना था, वहां पे तो ऐसा विचार आता है। और वहां से उसकी जर्नी परिक्रमा की स्टार्ट होती है। फिर वहां पे कुछ और उसको कोई लोग मिलता है, वो बोलता है कि यहाँ से आप जा सकते हैं, कहीं और से आप जा सकते हो, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। और कुछ वहां पे वर्णन किया कि वहां से वो बोले सुल्पान की झाड़ी जो बोलते हैं, जो लोगों ने किया होता है, तो वहां पे ऐसा बोलते हैं कि लूट लेते हैं वहां के आदिवासी लोग। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, उसको डर चला गया था। तो फिर वो वहां से ही निकलता है, वो जो झाड़ी होता है, और वहां पे कुछ आदिवासी उसको पूरा लूट लेते हैं, कपड़े बपड़े सब ले लेते हैं। और एकदम वो नॉर्मल कुछ भी नहीं था उसके पास, सिर्फ उसका जो डायरी और जो लिख रहा था एक कहानी, और कुछ फोटोग्राफ से, वो एक थैली उसके पास रहती है। और खाने पीने का कुछ भी नहीं है। और तो चलते चलते लास्ट में इसका एंड ऐसा दिखाया कि तट पे पड़ा हुआ है, और उसको लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा, खाना भी नहीं, और कि मैं कहाँ आ गया, यूएसए नहीं, वो सब उसको रिकॉल हो रहा है वहां पे उस मोमेंट पे। और वो पड़ा हुआ है वहां पे ऐसे ही।
और बस उसके मुंह से निकलता है नर्मदे हर। और वो सोच रहा है कि मुझे दर्शन होगा कि नहीं, पता नहीं मैंने ये क्या किया, परिक्रमा मैंने किया तो है कुछ। और वो जैसे ही आंख खोलता है तो एक छोटी सी लड़की एक मकाई लेके उसके साथ प्रकट होती है वहां पे, और बोलती है खाई ले, गुजराती में से ले खाई ले। तो वो एकदम, ये काफी मस्त मोमेंट है, आप देखोगे जब बुक पढ़ोगे तो इट इज वेरी अमेजिंग मोमेंट। तो वो जैसे ही धीरे से आंख खोलता है तो छोटी सी लड़की होती है, उसको खाने के लिए दे रही है। और ऐसा बताता है नर्मदा परिक्रमा जिसने कि नर्मदा कोई ना कोई रूप से आपको दर्शन देती है, कोई ना कोई रूप से। तो वो जब बोलता है कि आपका नाम क्या है, तो वैसे ही पूरे वहां से एक आवाज आती है कहीं से उसको कि रेवा, एंड दैट इज द एंड ऑफ द बुक। तो वहां पे उसको वो दर्शन दिए, यानी जो बताया। तो पूरा फ्लो एक नर्मदा एक युवा का था जो एक अमेरिकन थॉट प्रोसेस में भूषण भाई को क्वेश्चन, हम क्वेश्चन लेके भूषण भाई, उन्होंने परिक्रमा किया हुआ है, ये खत्म हो जाए तो पूरा फ्लो दिखाया गया कि एक युवा, जैसे मूवी में थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है, बट बुक में दिखाया गया कि एक अमेरिकन युवा यूएस से छोड़ के यहाँ पे नर्मदा पे ट्राइबल्स के लिए काम करने आता है। उसका तो मकसद था कि रिसर्च करके वहां पे जाके उसको प्रेजेंट करेगा। हाँ, लेकिन वहां जैसे रहता है तो वो धीरे धीरे उन लोग के साथ घुल मिल जाता है, उनके प्रेम भावना, और देखता है कि ये लोग भी कितना एनरिच है। जो हम देखते हैं कि उनकी लाइफ कुछ भी नहीं होती, कपड़े भी नहीं होते, तो अभी दे आर वेरी मच एनरिच देन अस। और एक नर्मदा के साथ जो परिक्रमा का जो महत्व है वो दिखाया गया है कि नर्मदा परिक्रमा से जुड़ के जो भाव आता है, तो वो कैसे लोग एक परिक्रमा, काफी लोग के लिए सरप्राइज होता है कि नदी की परिक्रमा क्या होती है। तो एक परिक्रमा में लोग जुड़ते हैं और उससे उसका जो भाव, उसका जीवन बदलता है और वो एक दर्शन देती है। तो कुछ बुक में भी कुछ इंसिडेंट दिए है कि नर्मदा कहीं ना कहीं आके आपको दर्शन देती है। 2-3 इंसिडेंट थे, तो उसको फिर वो रिकॉल होते हैं। जब वो लास्ट में वो दे रहा है तो उसको लग रहा है कि कोई छोटी लड़की और भी एक आई थी, या कोई रात को खिला रहा था, तो कोई एक व्यक्ति ने 2 रोटी ज्यादा ली थी, एक महिला ने। तो कुछ कुछ इंसिडेंट्स बताए गए कि नर्मदा दर्शन देती है। तो यही बुक है पूरा कि एक नर्मदा परिक्रमा, एक आदिवासी अपनी परंपरा संस्कृति, आदिवासी कल्चर का भी काफी शानदार वर्णन किया गया है। तो अगर आप जाओगे उस एरिया में तो हमें रियल में भी वो दिख सकता है, वहां पे आज भी होगा वहां पे अमरकंटक और वहां पे। तो काफी अच्छा बुक है, एक बार आप पढ़ोगे। हिंदी में आई डोंट नो इट इज अवेलेबल और नॉट, गुजराती में तो तत्वमसी बुक है उसका, मैं साथ में लेके बैठा हूँ। तो काफी उसका जो फ्रंट पेज भी है उसमें भी वही लास्ट उसका दिखाया गया है कि एक युवा पड़ा हुआ है यहाँ पे और नर्मदा के तट पे, जब उसको दर्शन मिलता है उसके पहले का सीन है ये। और रेवा मूवी भी जिसने देखा होगा, और आप बुक पढ़ के मूवी देखोगे तो और भी मजा आएगा। डायरेक्ट मूवी देखोगे उससे अच्छा है पहले बुक पढ़िए और फिर मूवी देखिए। तो आई होप कि आपको कुछ कुछ आइडियाज आए होंगे बुक में। तो अच्छा बुक है, आप एक बार पढ़िएगा। और कोई प्रश्न हो आपको तो आप पूछ सकते हो। नर्मदा काफी सारे इंसिडेंट्स, मैंने पूरा परिक्रमा तो नहीं किया, पर मेरा जितना नर्मदा के साथ अनुभव है, तो जैसे उसका जो जाडेश्वर यहाँ पे उसको जो अवेकनिंग होता है, मेरा भी शायद अवेकनिंग वही होता है। मैं अभी वहां जाके नर्मदा आरती करके, तो वो घाट पे मैं रोज बैठता हूँ वहां पे। तो जो लास्ट सीन दिखाया था उसने जहाँ से सोचा था कि नर्मदा परिक्रमा वॉक करके वो करेगा, तो मेरा भी मन है कि मैं वहां से ही, मेरा जब होगा पूरा परिक्रमा करूंगा वहां से ही शुरुआत करूंगा। हाँ, या सो थैंक यू, ये पूरा बुक है। ओके नितिन भाई, थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच। मच। बहुत बहुत ही ही अच्छी अच्छी तरीके तरीके से से आपने आपने एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया। किया। बुक मैंने मैंने पहले पहले भी भी कहा कहा था था कि कि साइंस साइंस और और साइलेंस साइलेंस का का अद्भुत अद्भुत समन्वय समन्वय है। है। मैंने मैंने आज आज 2 बार 2 उस बुक बार के उस रिव्यू बुक को के रिव्यू थोड़ा को देख भी लिया था उसमें यूट्यूब यूट्यूब के के ऊपर। ऊपर। मैं पूरा मैं बुक तो पूरा नहीं बुक पढ़ तो नहीं पाया पढ़ हूँ, पाया हूँ, लेकिन लेकिन जब आपने जब आपने अपनी अपनी स्टोरी स्टोरी सुनाई सुनाई थी थी मुझे मुझे आज, आज, और और आप आप ये ये बुक बुक पढ़ पढ़ रहा रहा हूँ, हूँ, तो तो मुझे मुझे लगता लगता है है कि कि काफी आप आप दोनों दोनों के के अंदर अंदर काफी काफी समन्वय समन्वय है। है। कुछ कुछ हैंड हैंड रेज रेज हुए हुए हैं, हैं, कोई तो कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन फिर है हम तो फिर हम क्वेश्चन क्वेश्चन ले ले सकते सकते हैं। हैं। कोई कोई अपना अपना एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किसी किसी को को शेयर शेयर करना करना है है नर्मदा नर्मदा परिक्रमा परिक्रमा का, का, तो तो वो वो भी भी शेयर शेयर कर कर सकते हैं। सकते हैं। या या बुक बुक से से रिलेटेड रिलेटेड कोई कोई एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस अपना अपना शेयर शेयर करना करना है। है। बुक रिव्यू बुक तो रिव्यू तो ऑलरेडी ऑलरेडी हो हो चुका चुका है, है, लेकिन लेकिन आपका बुक आपका से बुक से रिलेटेड कोई रिलेटेड अपना कोई अपना जीवन का जीवन अनुभव का है तो वो अनुभव अपना है तो शेयर वो कर अपना शेयर सकते कर हैं। सकते हैं। और और किसी किसी को को अपना अपना कुछ। આપણી આપણી સાથે ભૂષણ ભાઈ जुड़े हुए। हाँ यस सर। तो हाँ, भूषण भाई भूषण भाई का एक इंसिडेंट मैं ये बुक के साथ रिलेट करूंगा कि अभी मेरे कुछ दोस्तों ने परिक्रमा की थी,
तो भूषण भाई भरूच से ही है, और वो परिक्रमावासी जो करते हैं उनकी सेवा करते हैं। तो मेरा दोस्त आया था यहाँ पे नीलकंठेश्वर पूरी परिक्रमा खत्म करके, फिर भूषण भाई ने इनवाइट किया, तो वो उनका पूरा सत्कार करते हैं, पूजा करते हैं। तो मैं उनके साथ गया था, मेरे दोस्त के साथ, भूषण भाई के वहाँ। और पूरा खत्म हुआ, उन्होंने खिलाया, वो परिक्रमावासी जो थे मेरे दो दोस्त, उनको पूरा अच्छे से हार बार पहना के सब किया था। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा था कि इतना सारा सत्कार कर रहे हैं। जब मेरे दोस्त लोग तो चले गए वापस, फिर भूषण भाई ने मुझे एक चीज बताई थी जो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि उन्होंने बोला कि नितिन, तुम्हें पता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इन लोग को इतनी सेवा और वो सब। तो उन्होंने बताया था कि ये जो करके है उसके लिए उसकी आस्था और बड़ी बनी रहे। ये परिक्रमा की सेवा की है भूषण भाई ने, यानी वो परिक्रमावासी ज्यादा कि उन लोगों को लगे कि हमने जो परिक्रमा की है कुछ अच्छा किया है, तो ये परंपरा टिकी रहे। ऐसे भूषण भाई जैसे काफी अच्छे लोग हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं परिक्रमावासियों की। मैंने नर्मदा परिक्रमा की है, लेकिन मोटरसाइकिल पे की है 16 दिन में पूरी परिक्रमा, और खूब अच्छा अनुभव रहा था और खूब आनंद आया था। और जो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, जो गुजरात के लोग हैं, जो नर्मदा की सेवा करते हैं, उनकी जो गरीब लोगों, जो परिक्रमा वासियों के प्रति उसका प्रेम भाव, उसका समर्पण, वो हम नहीं समझ सकते। वो हमारी समझ के बाहर है कि वो ऐसा इतना प्रेम, वो अपना जो घमंड है, घमंड कि हम सिटी वाले हैं, हम मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, और लेकिन हम वो नहीं कर सकते जो वो लोग जिसके घर में कुछ खाने का नहीं है, फिर भी वो हमको उसमें से दे रहे हैं। हम अपने पास जो है उसका 10% भी नहीं दे सकते, वो लोग उसके पास जितना है उससे 50% से ज्यादा दे रहे हैं। ऐसा 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 हमने देखा है। और ये नर्मदा परिक्रमा का जो मार्ग है, वही मार्ग पे आप चलोगे भविष्य में भी, तो वो कुबेर जी, अग्नि, सनत कुमार, नारद मुनि, मार्कंडेय मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, भृगु ऋषि, जमदग्नि, भारद्वाज, वेदव्यास, असंख्य ऋषियों ने वही नर्मदा किनारे पे उन्होंने तपश्चर्या किया और देवत्व पाया था। वही मार्ग पे हमको चलना है। कोई मोटरसाइकिल पे जाएंगे, कोई बस में जाएंगे, कोई पैदल चल के जाएंगे। नितिन भाई मेरे ख्याल से पैदल चल के जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। वो बहुत अच्छी चीज है। और ये परिक्रमा करेंगे तो क्या अपना जो ईगो है, वो पूरा बैठ जाएगा कि मैं कौन हूं, वो आपको समझ में आएगा। ये यात्रा कोई यात्रा नहीं है, ये अपने अपन के साथ, स्वयं के साथ की यात्रा है। स्वयं के साथ आपको कुछ याद नहीं आएगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। बस माँ के साथ सहारे, उसके भरोसे चलते रहो। और परिक्रमा सिर्फ नर्मदा की होती है, दुनिया में कोई भी नदी की परिक्रमा नहीं होती। और ये परिक्रमा है वो बहुत पवित्र, धार्मिक और आध्यात्मिक इंपॉर्टेंस है उसका। और बहुत लोगों ने किया है, हजारों लाखों लोग कर रहे हैं एवरी ईयर। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के लोग कर रहे हैं, बाद में महाराष्ट्र के लोग कर रहे हैं, और बाद में गुजरात के लोग कर रहे हैं। बस खूब अच्छी तरह आप सबको खूब शुभकामनाएं। नर्मदे हर। तो भूषण भाई ने जो परिक्रमा का दिखाया कि आदिवासी का, ये बुक में भी वो दिखाया गया है कि आदिवासी जैसे भी हो, लेकिन वो ऑफर करेंगे आपको, कुछ भी हो, उनके पास ना हो तो आधी रोटी भी खुद खाएंगे, आधी रोटी आपको खिलाएंगे। तो ऑफरिंग काफी जगह है। और हमारी जो, अगर मैं इसको रिलेट करूं, हमारी जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा हो रही है आजकल, काफी लोग कर रहे हैं नर्मदा उत्तर वाहिनी, तो एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे उत्तर की तरफ बहती है, और यहाँ पे भी काफी सेवा और सब हो रही है। लेकिन तो भी जो रियल फील होता है पूरी परिक्रमा का, वो यहाँ पे, क्योंकि फैसिलिटी सब बढ़ गई है आजकल, तो पूरा एंटरटेनमेंट हो गया है। लेकिन अब आप खुद अकेले जब चढ़ोगे, तो मैं तो काफी जगह पूरा तो नहीं किया, पर नर्मदा के साथ जो मेरा अनुभव था, मैं जब यूरोप से आया था और लाइफ में काफी डिसअपॉइंटेड था, तो मैं नर्मदा घाट पे बैठता था मोस्टली। मैं यहाँ पे जो गायत्री मंदिर शाम को जाके, अभी भी जाके आरती करके आया वहाँ पे, तो वहाँ नर्मदा का जो फ्लो है और सुकून मेरे को मिलता था वहां से। तो कुछ मैं बात करता, नर्मदा जैसे मुझसे कह रही है कि बहते रहो, तो एक मैसेज नदी से आपको मिलता है।
जो इंस्पिरेशन मुझे नर्मदा से मिला मेरे लाइफ में, तो वहां से कहीं ना कहीं मेरे नर्मदा प्रेरणा यात्रा की भी शुरुआत की। मेरा जो भी सोशल कैरियर था वो घाट पे बैठ के ही मुझे वो विचार आया था। तो मैं ये अपना जो हीरो है बुक का, उससे मेरी लाइफ रिलेट कर सकता था कि मैं यूरोप में था और वहां से फिर वापस आके यहाँ पे नर्मदा से जुड़ा। और नर्मदा परिक्रमा का तो धीरे धीरे मन हो रहा है, जैसे भूषण जी ने बताया कि फ्यूचर में मैं पूरा चल के मैं सोच रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं जाता हूँ नर्मदा घाट पे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मुझे सुकून या कुछ ना कुछ नए मैसेजेस मिलते हैं। और प्रकृति के साथ आप जुड़ोगे, जैसे बुक में भी दिखाया गया है, तत्वमसी बुक में, एक प्रकृति के साथ रह के कितनी अच्छी लाइफ जी जा सकती है जो आदिवासी लोग जीते हैं। आप ट्राइबल में कहीं पे भी जाओ इंडिया में, ये नर्मदा नहीं कहीं और भी आप जाओ, तो प्रकृति के साथ जी के आप जो मैसेजेस मिलते हैं आपको, वहां जो सीखने को मिलता है वो कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी नहीं मिलेगा आपको। मैं तो काफी वर्ल्ड टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी इवन यूरोप में भी मैं पढ़ा हूँ, बट यहाँ पे जो सीखने को मिलता है आपको लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में। और आपका अहम, जैसे उन्होंने बताया कि अहम जो परिक्रमा का मुख्य वही है कि आप तत्वमसी, बुक का नाम भी वही है, तत्वमसी का बुक है तत्वम असी, यू आर द रियलिटी। एक एकात्मता है हमारी परमात्मा के साथ एक लीन होने के लिए। आप जो है वो दैट इज द रियलिटी, यू आर द रियलिटी। तो अपने आप से जुड़ना है परिक्रमा में, उसका मेन मकसद ही यही है। बुक का भी आप देखोगे, जैसे जो हीरो था वो भी धीरे धीरे अपने आप से जुड़ा। वो बाहरी एक्सटर्नल वर्ल्ड से तो देखा उसने यूरोप रिसर्च और ये सब, लेकिन धीरे धीरे इस जर्नी में वो अपने आप से जुड़ के प्रेरित हुआ परिक्रमा करने के लिए। तो आप सब भी ऐसे ही कोई भी यात्रा करे, नर्मदा परिक्रमा भी, उत्तरवाहिनी भी आप करे, तो मैं काफी लोगों को बोलता भी हूँ। वहां पे मैं जब अभी 2 बार तो मैं करके आया परिक्रमा, मैं पूछता हूँ लोग आप क्यों कर रहे हो परिक्रमा, तो किसी के पास कुछ जवाब ही नहीं होता। यानी वो जब आते हैं सिर्फ चलते जाते हैं, वो सिर्फ चल रहे हैं वहां जाके नदी के पास चल रहे हैं। लेकिन अगर आप पूछो उनको कि आप परिक्रमा क्यों कर रहे हो, तो वो एक इनर जर्नी है, अंदर से वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक तो है प्रकृति के पास आप जाओ, उससे जुड़ो, नदी की धारा से जुड़ो, वहां का जो अध्यात्म है, वहां की सेवा, यहाँ की जो परिक्रमा होती है, एक सेवा, संस्कृति और प्रकृति, इन तीन से जुड़ने का एक संगम है, जो मैं उत्तर वाहिनी को बोलूंगा या अपनी पूरी परिक्रमा को बोलूंगा। अब आप उससे जुड़ पाओगे तो एक सेवा, जैसे परिक्रमा करके हम आते हैं तो एक सेवा भाव लेके एक लर्निंग वो होता है कि आप सेवा सीखो। आज रात को 2-3 बजे भी लोग आपको खिला रहे हैं पकड़ पकड़ के, कुछ भी एक्सपेक्टेशन के बिना, तो वो सेवा भाव आप वहां से सीख सकते हो नर्मदा परिक्रमा से। एक प्रकृति के साथ कैसे जीते हैं लोग, तो वो आप सीख सकते हो। अपनी संस्कृति से जुड़ो। कई लोग एक, जैसे अभी तो कम है, लेकिन जब मैं यहाँ पे नर्मदा आरती हम जब करते हैं शाम को, लोग खड़े नहीं होते, बैठे रहते हैं घाट पे, हमें बोलना पड़ता है। आज भी मुझे बोलना पड़ा कुछ लोगों को नर्मदा आरती किया, क्योंकि हम लोग अपनी संस्कृति से नहीं जुड़े। ये धार्मिक चीजें नहीं है, हम उसको धार्मिक बना रहे हैं, ये आध्यात्मिक चीजें हैं। और जब भी आपके अंदर आध्यात्म जगेगा तब आप संस्कृति से और भी अच्छे से जुड़ पाओगे। हम लोग जो आजकल हिंदू मुसलमान, और ये बुक में भी दिखाया गया कि एक पहला जो सीन है उसमें ट्रेन में हिंदू मुसलमान लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो हमारा देश आध्यात्म का ही देश बना है। अभी जो बन रहा है धार्मिक चीजों से जो बंटवारे हो रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, लेकिन हम संस्कृति को भूल रहे हैं धीरे धीरे। आज 10 साल के बाद नर्मदा आरती कोई करेगा पता नहीं, लोग आज भी आके, यानी जो युवा लोग आते हैं उनको अलग लगता है, वो ये क्या है आरती और सब नहीं, पुराना उनको लगता है। कोई धोती पहन के आरती करेगा तो उनको थोड़ा वो लगेगा ये पुराना हिंदूवादी ऐसा बोलेंगे, या बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही रिलीजियस है। पर ये हमारी संस्कृति है, और वो हमें जो, अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम पे भी जाए, जो भी हम कर रहे हैं उसमें काफी सारी चीजें सीखने को है। आरती आप करते हैं या प्रकृति की पूजा करते हैं, तो उसमें देर आर टू मच साइंस। तो एक ये बुक से ये भी एक संदेशा मिल रहा है कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हम जो आगे अभी बढ़ रहे हैं, हमारा जीवन जा रहा है। जैसे हम लोग डेवलपमेंट, विकास के नाम पे हमें लग रहा है कि हम बड़ी सिटी में मेट्रो बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपनी प्रकृति और संस्कृति से बहुत ही दूर जा रहे हैं। ये बुक पढ़ के आपको वो समझ में आएगा कि हमें वी हैव टू स्टिक विथ अवर अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी एंड द नेचर। नॉट, वी डोंट हैव टू बी अ रिलीजियस, वी हैव टू बी स्पिरिचुअल। सपन 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 राणा सर ने भी कुछ हैंड रेस किया है। कुछ क्वेश्चन है आपका, कुछ कहना है आपको? सुरेंद्र सिंह जी। हाँ। सपन भाई, एक एक मिनट। आप सभी से मेरी विनती है कि जो कोई भी बोल रहे हैं वो अपना वीडियो अगर ओपन करे तो अच्छा रहेगा। आपकी मर्जी है वैसे। सपन भाई राणा। ओके।
कैमरे की परमिशन नहीं मिल रही है, मुझे कुछ तो दिक्कत हो रही है मेरे फोन में। No पर कैन यू हियर मी? Yes. या वी कैन हियर। हाँ नितिन भाई, बहुत अच्छा वर्णन किया आपने अध्यात्म और धार्मिकता के बारे में, और बहुत ही अच्छा वर्णन किया ये जो बुक है उसके बारे में। आप शायद मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो, शायद भूल भी गए होंगे। मैं तेजस राणा का छोटा भाई हूँ, अगर आपको याद हो तो। हाँ तो हाँ, हम जब छोटे थे तब हम गए थे ये नर्मदा परिक्रमा करजन कॉलोनी से। उस टाइम पे किया था, पर कुछ उस वही अब कुछ ऐसे फन में ही किया था उस टाइम पे। तो सब जा रहे तो अपन भी निकल गए। बट आज जो आपने बताया जिस तरीके से कि नर्मदा परिक्रमा का असल महत्व क्या है, राइट, वो कभी पहले सुनने में नहीं आया था। तो जो मेरी पत्नी है वो जो एक्चुअली भोपाल से है, तो इसलिए मैं बोला कि अगर इसको हम हिंदी में कर सकते, क्योंकि वो भी सुन रही थी मेरे साथ। तो मुझे जानना है कि क्या भोपाल के आसपास ऐसी कुछ नर्मदा परिक्रमा की कुछ मार्गदर्शन आप दे सकते हो क्या, उसमें किस तरह से वहाँ पे हम कर सकते हैं अगर आए तो? हाँ, मुझे भूषण भाई अच्छे से गाइड करेंगे आपको। भूषण भाई आप हो? भूषण भाई ने पूरा किया हुआ है परिक्रमा। भूषण भाई। हाँ बोलो। हाँ क्या भैया, हाँ भूषण भाई। हाँ जो उसका जो प्रश्न है वो पहले तो ये कि उसको पूर्ण परिक्रमा करनी है या उत्तरवाहिनी जैसी परिक्रमा। एक उत्तरवाहिनी अभी गुजरात में चल रही है, दूसरी उत्तरवाहिनी मंडला के पास चल रही है। तो एक कौन सी परिक्रमा चाहिए उसको? फुल परिक्रमा चल के चाहिए तो मैं सब कुछ बता सकता हूँ। तो सपन, आई गेस मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ, आई रिमेम्बर यू। तो मैं भूषण भाई का नंबर तुम्हें शेयर कर दूंगा। वी आर कनेक्टेड ऑन फेसबुक एंड लिंक्डइन। तो हाँ, भूषण भाई तुम्हें गाइड अच्छे से करेंगे। उन्होंने काफी परिक्रमा पे की है, तो भोपाल का एरिया उन्होंने देखा हुआ है। तो ही विल गाइड यू कि आप वहां पे कैसे कर सकते हैं। मेरा नंबर दीजिएगा, मैं उसको समझा हाँ हाँ दूंगा। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा सपन, मैं तुम्हें नंबर शेयर कर दूंगा। आई रिमेम्बर यू, डोंट वरी सपन राणा, आई रिमेम्बर यू। या ओके नाउ। थैंक यू। ओके या चलिए बहुत चलिए, अच्छा। और कोई प्रश्न? हाँ, और किसी को हमारे पूछना हो? हमारे महाराज भी जुड़े हैं, विनोद भाई, विनोद जी, जो रोज आरती करते हैं नर्मदा पे, गायत्री मंदिर पे। नमस्कार विनोद भाई, हाँ आपको भी कोई माता जी नर्मदा के बारे में कुछ आपके अनुभव शेयर करना है तो कर सकते हो। रोज आप तो कितने सालों से रोज सुबह शाम मैया की आरती करते हो। ऐसा कोई अनुभव हुआ हो आपको? हाँ, आप सुन रहे हो विनोद महाराज? आपका माइक माइक बंद है। माइक माइक आपका बंद है। माइक बंद है आपका। तो जैसे उनका माइक मैं थोड़ा, हाँ हाँ बोलिए। अब आया। चालू हुआ। हाँ तो मैं जब भी पहले चांद में जब गुजरात में आया था तो मैं अंकलेश्वर में काम करता था, उधर इंडस्ट्रीज में। तो मैं हमेशा नर्मदा माता का नाम लेके सोता भाई था तो नर्मदा माता का नाम लेता था हर वक्त। तो नर्मदा माता ने यहाँ जो गायत्री मंदिर में घाट है उस घाट को दिखाया था हमें स्वप्न के माध्यम से। मैं कभी आया नहीं था यहाँ गायत्री मंदिर में। तो 2010 में जैसे दिखाए थे, लेकिन मैं 2011 में आया यहाँ ढूंढते हुए। मैं नीलकंठ महादेव जाता था लेकिन यहाँ पे नहीं आया था कभी। तो नीलकंठ महादेव से एक बार आया तो मैं दोपहर में आया और ये गेट बंद था। तो मैं नीलकंठ महादेव गया, वहाँ से नीचे नीचे आया और ये घाट पे आया और स्नान किया। और फिर स्नान करके जब पूजा वूजा करके जब ऊपर आया हो, वो हम लोग शिव जी की आरती जो करते हैं ना, वहाँ पे जब आया तो नर्मदा माता की जो मंदिर है भी ये ऊपर लाया है, उधर आगे था। तो उस समय वो मंदिर में देखा जब शिव जी का और नर्मदा माता का, तो मुझे याद आया कि नहीं तो यही घाट स्वप्न में देखा था। फिर धीरे धीरे मैं यहाँ आना जाना चालू हुआ
और नर्मदा माता का हमेशा मतलब स्वप्न के माध्यम से कुछ न कुछ बताती रही है, आगे मार्गदर्शन वही करती रहती है, उन्हीं के हिसाब से हम सेवा करते रहते हैं आगे। और फिर वो गायत्री माता से जोड़ा नर्मदा माता ने, यहाँ पे मुख्य रूप से गायत्री माता है, इनके लिए इसके लिए हम गायत्री माता की और नर्मदा माता की सेवा में ही रहते हैं, बस बाकी आगे के काम वही सब करते हैं। काफी सुंदर घाट है, और आप कभी भी, मैं तो ऑलमोस्ट जब भी इवनिंग में करता हूँ, सुबह भी आप कभी आरती में जाए तो काफी अलग अनुभव रहता है। जो नर्मदा आरती आप करोगे वहाँ पे, तो महाराज रोज करते हैं, तो कभी आप जुड़ोगे वहाँ पे, ये सब चीजें आपको क्या अपनी संस्कृति से जुड़ सकते हैं इससे। किसी ने प्रश्न पूछा है कि क्या नर्मदा परिक्रमा का आयोजन कर सकते हैं इस ग्रुप से? निरल हाँ, से वो आंसर दे सकते हाँ इस ग्रुप से नर्मदा का વ્રજેશ ભાઈનો પ્રશ્ન હતો લગભગ તો ઉત્તર વાહિની નર્મદા પરિક્રમા અત્યારે થાય છે. નીતિનભાઈ બી ઘણીવાર જાય છે અને એક વાર તો હું પણ કરી આવ્યો. નીતિનભાઈ આ વર્ષે 2 વાર કરી આવ્યા. મેં લગભગ 6 વાર ટોટલ કરી છે. તો ઘણીવાર જઈએ છે. તો આપણું જે ગ્રુપ છે એમાં 24 કલાક માટે આવતીકાલે ઓપન જ છે. તમે લખજો. આપણે ક્યારેક બની શકે તો નીતિનભાઈ, હું, આપણે બધા સૌ ભેગા જઈશું. તો મૂળ તો યાત્રાનું જ મહત્વ છે. જે ઇનર જર્ની છે, તમે સાથે ચાલો અને સાથે ચાલનારા આપણા જેવા સીકર્સ હોય તો વધારે મજા આવશે. તો ચોક્કસ જઈશું. કદાચ પ્લાન થાય તો જરૂર કરીશું. ઓકે, બહુત ખૂબ સરસ. કોઈને હજુ કઈ કેવું છે? નમસ્કાર નર્મદેહર. બોલો નર્મદા. हाँ नर्मदा दिलीप भाई। हाँ दिलीप भाई, હું પણ મારા જીવનના 2 પ્રમુખ આકર્ષણના કેન્દ્રો, એક હિમાલય અને એક માતા નર્મદા, બંને મને થોડો જે ચાન્સ આપ્યો છે એમના આસપાસ થોડું ફરવાનો. એમાં મને યાદ છે ત્યાં સુધી હું એક વખતે ઓમકારેશ્વર જે કહેવાય માર્કંડેય સંન્યાસ આશ્રમથી શરૂ કરીને કેટલાક એકાદ અઠવાડિયા સુધી યાત્રા કરેલી. પછી એકાદ વખતે ચાણોદથી શરૂ કરીને થોડી એકાદ અઠવાડિયું કરેલી. એ માલસર રહેવાનું બનેલું. એકાદ વખત મારા મમ્મી પપ્પા સાથે થોડુંક કહેવાય નારેશ્વર, અશા ને બધું કરેલું. ને થોડા જે કહેવાય ને કટકે થોડો જે કઈ આપણે ચાખવા સ્વાદ મળે છે. પૂર્ણ નર્મદા પરિક્રમાનો તો અવસર માતા આપશે ત્યારે ચોક્કસ કરીશું. એટલે અદભુત છે, મતલબ કે આખું જે કહેવાય ને ટ્રાન્સફોર્મિંગ જર્ની. અને આ સાથે હું રિલેટ પાછી મારી નોર્થ ઇસ્ટ યાત્રાને પણ કરું છું. નોર્થ ઇસ્ટમાં પણ હું બ્રહ્મપુત્રના કિનારે રહેતો તો એકદમ ટોપ ફ્લોર ઉપરથી બ્રહ્મપુત્ર આખી આમ વહેતી હોય જબરજસ્ત. સાંજના મતલબ એકદમ સાંજના રંગો જે બદલાતા હોય આખા 1.5-2 કલાક આખું મેડિટેટિવ જર્ની રહેતી એમ કે. એટલે જે નદીનું જે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જે મહત્વ છે અને જે આપણને એના પરથી શીખવા મળે છે એ અદભુત હોય છે. નર્મદા નદીનું તો બહુ જબરજસ્ત છે જ, એમાં કઈ એ નથી. જસ્ટ આટલું શેર કરું. બાકી તો અમે અમારો જે કોર્સ ચાલુ કર્યો ને એમાં એનું જે શરૂઆત આ રીતે કરેલી, કમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, રેવા મૂવી બતાવી અને એના ઉદઘાટન તરીકે મેં રમેશ તન્ના સાહેબને કહ્યું અને એ રીતે બહુ સરસ રીતે આગળ વધ્યું છે. એટલે અમે થોડો પ્રયત્ન કરતા હોય છે કે યુવાનોમાં પણ આ રંગ અને આ અધ્યાત્મનો ચસ્કો લાગે. ધન્યવાદ. દિલીપભાઈ ચારોતર યુનિવર્સિટીમાં આપણે ચારુસેટમાં પ્રોફેસર છે. અચ્છા, ખૂબ સરસ. તમે જોઈન થયા દિલીપભાઈ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમે ઘણા બધા લોકો પહેલાં પણ છે અને બધા જોઈન પણ કરતા હશે. વેરી ગુડ. ખૂબ સરસ એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યો અને તમારી ઈચ્છા છે ચોક્કસ પૂરી થશે. ના, માં નર્મદા તો બધાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે જ છે. આપણે એક મહારાજનો અનુભવ બહુ સરસ રહ્યો મને કે એમને સ્વપ્નમાં આ બધી વસ્તુ આવતી હતી. મહારાજ સાથે અમે विनोद महाराज साथ में आरती करी है. जब हम आरती करते हैं शाम को तो एक बार ऐसा फ्लैट था, नदी एकदम शांत थी. जैसे हम आरती करने गए तो वो उछली थोड़ा. तो महाराज ने बोला कि देखो आप नर्मदा, आप मुझे वो बोलते हैं नर्मदा पुत्र है तो नहीं उछली, वो बेटे को दर्शन देने आई. देख वो भी एक अच्छा अनुभव था कि अगर आप मानो तो वो ऐसे ही हवा का झोंका, लेकिन हमारे लिए कि नर्मदा आई, वो खुश हुई नर्मदा के हम आरती करने आए तो शी बिकम्स हैप्पी टू सी दर्शन. तो मैं तो माँ ही मानता हूँ. और मेरा जो नर्मदा प्रेरणा यात्रा, हाँ मैं एक यात्रा के बारे में बताऊंगा. जैसे परिक्रमा तो होती है, तो मैंने जब स्टार्ट किया था नर्मदा का तो मुझे लगा कि नर्मदा परिक्रमा तो हम एक इनर जर्नी रहती है, तो उसको मैंने नर्मदा प्रेरणा यात्रा के रूप में रूपांतरित किया, जिससे हम लोग नर्मदा के तट पे जो भी अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे रोल मॉडल्स हैं, तो उनसे मिलते हैं. जो मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ अपने फाउंडेशन द्वारा नर्मदा प्रेरणा. अब तक मैंने 17 या 18 यात्रा की है उसमें, और तकरीबन 300 लोग जुड़े पूरे भारत के 18 राज्यों से.
तो हम लोग नर्मदा से शुरुआत करते हैं, लेकिन नर्मदा में हो रहे अच्छे काम, रोल मॉडल जैसे सेवा रूरल हो गई, कि जो एक कम्युनिटी हेल्थ में ट्राइबल्स के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो नर्मदा के साथ आप मंदिरों में जा रहे हो, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो सही में समाज के लिए काम कर रहे हैं, उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। वो मेरा पर्सनली बिलीफ था। तो जैसे इस बार भी मैंने उत्तर वाहिनी किया, तो उसमें हम छोटा सा ग्रुप था, तो पहले हम सेवा रोल गए, वहां पे मिले। यहाँ पे रवि भाई मेरे मित्र हैं, उनकी गौशाला गौ के लिए कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं, पंचगव्य चिकित्सा थे, तो उनसे मिले। तो ऐसे लोग हैं जो प्रकृति में आके, बाहर लंदन छोड़ के वापस आके काम कर रहे हैं, यूएस छोड़ के आके, तो उनसे भी आप जब मिलते हैं एक अलग ही वाइब्स होती है। तो परिक्रमा के साथ, और मेरा भी जब मन होगा पूरी परिक्रमा करने का, तो मैं चाहूंगा कि साथ में ऐसे लोगों को भी जोड़ूं जहाँ पे वो तट पे अच्छा काम हो रहा है। तो ये भी एक तीर्थ जैसा ही मेरे लिए, तो तीर्थ ही होते हैं जो नर्मदा प्रेरणा यात्रा के रोल मॉडल्स होते हैं, वो एक तीर्थ जैसा ही मेरे लिए, कि अगर मैं मंदिर में जाऊं और उनसे ना मिलूं तो नहीं चलेगा। कोई इतना अच्छा काम कर रहा है, तो आप उनसे भी मिलोगे तो एक अलग प्रेरणा, एक सेवा भावना जो होनी चाहिए ना परिक्रमा में, एक काफी कोर है वो सेवा का, तो वो जुड़ना चाहिए। तो आप भी लोग कभी भी, आप हमारी जो यात्रा होगी उसमें भी आप जुड़ सकते हो, नर्मदा प्रेरणा यात्रा में, जिसमें हम परिक्रमा तो नहीं करते, लेकिन हम लोग छोटा सा यात्रा ही करते हैं, जिससे हम वॉक भी हो जाता है छोटा, लेकिन नर्मदा के तट पे आने वाले कल्चर है वहाँ का, जो अभी भरूच का एरिया हमने कवर किया है, तो नर्मदा में राजपीपला हो गया, वहाँ का हेरिटेज हो गया। क्या आप नर्मदा के एरिया में राजपीपला गए? तो राजपीपला शहर क्या था, वो 600 साल पुराना एक डायनेस्टी था। भरूच सेकंड ओल्डेस्ट सिटी है, भरूच में ऐसी आर्ट है, क्राफ्ट है, तो वो सब भी हमें पता होना चाहिए, खास करके युवाओं को, कि हमारे युवा जो भरूच के, उनको भी नहीं पता कि भरूच शहर क्या है, कि राजपीपला क्या था पहले, नर्मदा क्या है, किसी को पता ही नहीं। परिक्रमा खत्म हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इससे अपने रूट से कनेक्ट होना है। परिक्रमा का मेन मकसद ही वही है, और कोई भी तीर्थ यात्रा का, इवन प्रयागराज जो कुंभ हुआ उसका भी, कि हम अपने कल्चर संस्कृति से जुड़ के रहे, तभी वो संस्कृति आगे जाके टिकेगी। वेस्टर्नाइजेशन तो आएगा ही, ऑब्वियसली हम उसको रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी वो सब तो आने ही वाला है, लेकिन ये सब परिक्रमा जो कुंभ हो रहा है, जो तीर्थ यात्रा हो रही है, उसी ने अपने देश को टिका के रखा है अभी तक, आज तक। મિનલ સે કઈ કેવું હતું? હા, આપણી સાથે હરેશભાઈ ત્રિવેદી સાહેબ પણ જોડાયા છે. સાંભળો છો હરેશ સાહેબ? હાજી. હા, હરેશ સાહેબ જે છે એ અમદાવાદમાં વાંચન વિમર્શ કરીને પણ ગ્રુપ ચલાવે છે, અને આપણા જેવી જ બુક રિવ્યુ ને અને બહુ જ સરસ એક્ટિવિટી કરે છે, અને એમનો ધ્યેય એવો છે કે 1 લાખથી પણ વધારે બુક્સ દર વર્ષે વંચાય અલગ અલગ વ્યક્તિઓ દ્વારા, અને દર મહિને એમના પણ બુક રિવ્યુ થાય છે. એમના એક ગ્રુપ સાથે પણ હું જોડાયેલો છું, અને ખૂબ સરસ એક્ટિવિટી કરે છે. તો એમનો રિવ્યુ પણ આપણે સાંભળીએ, એ જે કહેવા માંગે છે સાહેબ. એકદમ નિરલ સિંહ, થેન્ક યુ કે તમે મને આ ઇન્વિટેશન આપણા ગ્રુપની અંદર શેર કર્યું, ને જેના કારણે હું જોડાઈ શક્યો. બહુ જ નીતિન કે તમને સાંભળવાની ખૂબ જ મજા આવી, અદભુત, જાણે આપણે જાતે ત્યાં પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરતા એવું જ ફીલ થતું હતું. મારે એક વાત એ કહ્યું છે કે એમાં જે ફિલ્મમાં એક એક્ટર જે છે, જે આશ્રમમાં મુનિમજીનો રોલ કરે છે, પ્રશાંત બારોટ કરીને છે, મુનશીજી છે, શાસ્ત્રીજી બહુ જ અંગત મિત્ર જે છે. અને એટલે આપણે ક્યારેક તમારે એના એક્સપિરિયન્સ પણ મેકિંગ વખતના જે છે કે એને જ કરતા કરતા આ કેવો એક્સપિરિયન્સ થયો છે એવું કંઈક કરશું તો ડેફિનેટલી વી કેન ઇન્વાઇટ હિમ, એ પણ એના એક્સપિરિયન્સ શેર કરશે. એ જ વાત છે. અને બસ અમે તો નિરલસિંહ જે અમારા ગ્રુપમાં છે, એટલે એક અમે મારો એનજીઓ છે વિદ્યા ભારતી ફાઉન્ડેશન કરીને, મેઇનલી અમે કામ તો અંડર પ્રિવિલેજ બાળકોના એજ્યુકેશન માટે ને ઓવરઓલ એના ડેવલપમેન્ટ, હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ માટે કામ કરીએ છીએ. પણ મારો ખુદનો રસનો રુચિ થોડું લિટરેચર બાજુ, પેલું મારું કમ્પલ્સન પર પેશન છે. એટલે અને એ પણ ઈચ્છા હતી કે લોકો જ્યાં ટેકનોલોજીના કારણે, મોબાઈલ ને સોશિયલ મીડિયાના કારણે વાંચતા નથી, અને આદત જ ધીમે ધીમે છૂટી જાય છે. તો એ બહુ જ જરૂરી છે. એટલા માટે મારો 50 જેટલો અમારો સ્ટાફ છે અલગ અલગ જગ્યાઓ પર. એમાં ભરૂચ સાઈડમાં પણ છે, ત્યાં વાગરા જિલ્લામાં પણ છે, અલગ અલગ લોકેશનો પર છે. એટલે બધા પાસે અમે 1 વર્ષની અમે રીડિંગ મેરેથોન ચલાવી. એમાં બધા એક જે ક્લસ્ટર જે છે અમારું, એ દર મહિને એક બુક વાંચવાની, અને 1 વર્ષ ચાલ્યું. એમાંથી 5 ગ્રુપ જે છે, 5 ગ્રુપમાંથી 2 વર્ષે 1 વર્ષ પૂરા કર્યા. 1 વર્ષ ઉપરાંત પણ એમને 1 મહિનો એક્સ્ટ્રા લીધો બોનસમાં. અને દર મહિનાની 5 તારીખ સુધીમાં પોતે કયું પોતાની ચોઈસ બુક છે વાંચશે, એની બધી માહિતી અમને આપી દે. બુકનું ટાઇટલ, રાઇટર, પબ્લિશર, નંબર ઓફ પેજીસ ઓછામાં ઓછા 100,
હોવા જોઈએ. અને મંથ એન્ડમાં અમે 1-1.5 કલાક માટે બધા પોતાની બુક પોતાને કેવી લાગી એની અનુભૂતિ શેર કરે અને સ્વાદ કરાવે અને 5-7-10 મિનિટ બધા બોલે એમ કરીને 1.5-1.5 કલાક અમારું આ સેશન ચાલે. અને અગેન પાછું આ રીતે 12 મહિના સુધી કન્ટિન્યુઅસ ચાલે. અને એન્ડ ઓફ ધ ખાલી અમે એપ્રિસિએશન માટે સર્ટિફિકેટ આપીએ છીએ. અલ્ટિમેટલી અને બુક પણ અમે આપતા હોઈએ છીએ ગિફ્ટ તરીકે. પણ અલ્ટિમેટલી ગિફ્ટ એને મળતી હોય છે કે આદત વાંચવાની ફરીથી કાંઈક કમ્પલ્સન આવે છે ને કે આ તારીખ સુધી મારે પૂરું કરીને બોલવાનું છે, વાંચવાનું છે. અને ઘણી વાર આપણે પુસ્તક લઈ આવીએ છીએ પણ આપણી પાસે આપણે પોઝેશન હોય છે એટલે એમ તક છે આપણી પાસે ગમે ત્યારે વાંચશું પણ વંચાતું નથી. ક્યારેક એક ચેપ્ટર વાંચી લે ત્યારે વળી પાછું ટાઈમ નથી એટલે મૂકી દઈ. પણ જ્યારે ડેડલાઇન હોય છે એટલે વાંચવું જ પડે છે. પછી એના ઓટોમેટિક આયોજન થવા માંડે છે. અને જ્યારે બોલવાનું હોય છે ત્યારે એક્ટિવ રીડિંગ થાય છે, પેસિવ નહીં. નોટિંગ પણ થતું કે હું શું બોલીશ મને બધા સાંભળવાના છે. અને એટલે ધીમે ધીમે કરીને બુક તરફ અમારી લોકોને કેમ વાળવા. અને મોટા તો ઠીક છે અમારા બાય ડિફોલ્ટ સીધા બેનિફિશરી છે. અલ્ટિમેટલી એમના ઘરોની અંદર જેમને બાળકો જે છે એ પણ સાંભળતા હોય અને ઘરની અંદર એક રીડિંગનું કલ્ચર બને કે લિટરેચરનું કલ્ચર આવે અને આપણા ડિસ્કશનના ટોપિકો આપણા આવે અને બાળક ધીમે ધીમે આ કલ્ચરથી એને હેબિટ મળે. અને એ પણ સાથે માત્ર મમ્મી શું વાંચે, પપ્પા તમે શું વાંચો, પછી બાજુમાં બોલતા હોય તો લપાઈને સાંભળતા પણ હોય. નેક્સ્ટ જનરેશન છે એને કંઈક એ ચીજ આપી છે એટલે 1 લાખ પુસ્તકનું અમે સહિયારું મિશન લીધું છે કે અલગ અલગ 8-10 લોકોના ગ્રુપ બનાવવાના. અને થોડું એનું બધી ટેકનિકલિટી પણ ઓલમોસ્ટ ઘણી બધી કમ્પ્લીટ કરી લીધી છે. પણ ત્યાં સુધી મારા 5 ગ્રુપ અને એ સિવાય 3 આવા વોલન્ટરી ગ્રુપ પણ બન્યા છે. એક ગ્રુપમાં નિરલ સિંહ પણ છે. તો આ ચીજ અમારી મુહિમ જે છે અમે આવનારા 2 વર્ષ માટે ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ખૂબ સરસ. નવો એક્સપિરિયન્સ તમારા તરફથી પણ અમને મળ્યો. ખૂબ સરસ. તમારું કર્તવ્ય મારા બધા પૂરા કરે એવી કે અમારી તરફથી શુભેચ્છાઓ. કંઈ પણ હેલ્પ હોય તો નિરલસિંહનો નંબર તો છે જ આપણી પાસે. આપ ચોક્કસ ભરૂચમાં અને આપમાં જે રિવ્યુ કરવા ચાહો તો ચોક્કસ તમને વેલકમ છે. બીજું કોઈ? રણજીતસિંહ ડાભી, આપ તો એક અદ્ભુત પર્સનાલિટી છે. તમારે કોઈ વિષયની જરૂર નથી હોતી. તમને કોઈ નામ આપવું એટલે તમે બોલવા લાગશો. કોઈ 2 શબ્દ આજના દિવસે, કારણ કે તમે તો નર્મદા કિનારે આખું જીવન વિતાવેલું છે. રણજીતસિંહ પ્લીઝ. માઇક ઓફ છે આપનો. યસ સર. અવાજ આવે છે? હા આવે છે. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. ચલો, આટલા બધા લોકો, આટલા બધા સજગ લોકો વચ્ચે સાંભળવાની અને બધાના રિવ્યુ ને સાંભળીએ છીએ બોલવાનું નથી થતું. પણ ભાઈએ જે વાતો કરી એ ખૂબ અગત્યની છે. જે ધાર્મિકતા અને અધ્યાત્મ વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે, મોટે ભાગે ધાર્મિકતા વધતી જાય છે અને આધ્યાત્મિક જીવન ઓળખ વધતાઈ રહી છે. કારણ કે સાચું અધ્યાત્મ આપણને તેજ આપે છે, વિવેક બુદ્ધિ આપે છે અને જે તમામ પ્રકારના સદગુણો છે તે આપણને આપે છે. જ્યારે એટલે છોતરાની પૂજા ના થાય પણ અંદર રહેલું જે કોપરું હોય છે નારિયેળ શ્રીફળનું, એના તરફ ધ્યાન જવું ખૂબ જરૂરી છે. કોઈ પણ નાનામાં નાની વસ્તુનું પરિણામ તો આપણા ઉપર થતું જ હોય છે, પણ જ્યારે થોડા ઇનર ઉતરીને એનું મહત્વ સમજીને કરીએ તો મજા આપણે જુદી હોય છે અને આપણા જીવન ઉપર પરિણામ દેખાય છે. અને પછી સાઈડ ઇફેક્ટ છે કે બાજુના લોકો માટે ફેલાય એ તો ઠીક છે, પણ આપણે આ મરણ અને જીવન વચ્ચે ખૂબ આનંદથી જે રીતે જીવવું જોઈએ તે રીતે જીવીને ઈશ્વરને ગમે એવું જીવન જીવાય તો એનાથી ઋણ શું. તો આટલા બધા સજ્જનોને મળીને બહુ આનંદ થયો. અને નિરલભાઈને કહીએ છીએ, નીતિનભાઈને પણ કહું છું કે એકાદ દિવસ કંઈક એવું રાખો કે ભલે 2 દિવસ 3 દિવસ 1 દિવસનું, આપણે બધા સાથે આ બધી દુનિયાની ઝંઝાટ છોડીને કે જેમાંથી તો છેલ્લા શ્વાસે પણ ફુરસત મળવાની નથી અને પછી કઈ મનમાં ના રહી જાય અને ઘૂંટણ કામ કરતા બંધ કરી એ પહેલા કઈ કરી દો તો આપણે બધા લોકો એકબીજાનો સહવાસ માણી શકીએ અને એકબીજાના જે સારા મુદ્દાઓ છે
આનંદ એમ કીધું છે ને શાસ્ત્રોમાં, કાવ્ય શાસ્ત્ર વિનોદેન કાલો ગચ્છતિ ધીમતા વ્યસનેન ચ મૂર્ખાણામ વિદ્રયા કલે. તો આવા બધા સારા સારા લોકોનું, અમારા સુરેન્દ્રસિંહભાઈ છે, વિરલસિંહ છે, કેટલાક અમદાવાદ થી ભાઈ હમણાં વાતો કરી, બહુ સારી. અને એવા લોકોનું જો એકાદ ઓશો કે છે ને કે સ્વર્ગ કે નર્ક ઉપર બધું કશું હોતું નથી, પણ જ્યારે આટલા લોકો મળીને કઈ 2-3 દિવસનું કરી નાખશું એટલે સમજવું કે સ્વર્ગમાં આપણી મુસાફરી શરૂ થઈ ગઈ. અને એવા મોકાઓ ઝડપવા જોઈએ. આભાર બધા, ખૂબ આભાર આયોજન. થેન્ક યુ વેરી મચ. બસ અમે જે પ્રમાણેની અપેક્ષા રાખી હતી તમે શબ્દ દ્વારા પૂરી કરી. મને લાગે છે 10 વાગવા આવ્યા છે અને નિરલસિંહ આપને કોઈ લાસ્ટ મેસેજ. નિરલસિંહ આવા ગ્રુપના એડમિન છે, ફાઉન્ડર છે, મેન હેન્ડલિંગ એ જ કરે છે. કઈ અંતિમ સંદેશ? ખરેખર તો સુરેન્દ્રસિંહ જ કરે છે. હું તો શ્રોતાની જેમ જ જોડાઉં છું અને મને એમાં બહુ મજા આવે છે. તો તે છતાં પણ જો કોઈ નવા લોકો હોય તો આપણે એસક્યુબ જે આપણું ગ્રુપ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ સીકર સોસાયટી, એની બસ એક લીટીમાં માહિતી આપી દઉં તો આપણું જે આધ્યાત્મિક વાંચન અને જે સાધના છે એના થકી આપણે સૌ એકબીજાને મદદ કરીએ અને એકબીજાને કંઈક ગાઈડન્સ આપીએ, એકબીજા સાથે જોડાઈએ, એ જ એક આખો અનુભવ શેર કરવા માટે એક ગ્રુપ ઊભું કર્યું છે. અને આજે આપણી જે બુક રિવ્યુની જે છે ને ગતિ હવે ધીરે ધીરે પકડાય છે. અને છેલ્લે હું તો નીતિનભાઈનો બહુ આભારી છું કે 2 આપણા અઠવાડિયાથી એ સતત લે છે બુક રિવ્યુ. પહેલા એમણે જોનાથન લિવિંગસ્ટન સીગલની લીધી અને આજે તત્વમસીની લીધી. અને બંનેની જે કોમન વાત એવી છે કે બંને સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની ઉપર આધારિત બુક્સ છે. તો કોઈ એક પક્ષી અથવા તો કોઈ એક વ્યક્તિ અધ્યાત્મની યાત્રા ઉપર નીકળે છે અને કંઈક પામે છે. તો એવી ઘણી બધી બુક્સ છે. એક સિદ્ધાર્થ છે હર્મન હેસની, એ આવી બુક છે. એક અલ્કેમિસ્ટ છે પાબ્લો કોહલોની, તો એ પણ એ જ પ્રકારની બુક્સ છે. તો ઘણી બધી એવી સ્પિરિચ્યુઅલ નોવેલ છે કે જે એક બિગિનર્સ માટે બહુ હેલ્પફુલ થઈ શકે, કારણ કે એ વાર્તાના સ્વરૂપમાં હોય અને બહુ આસાનીથી એને તમે સમજી શકો. ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ યોગી છે, તો એ પણ એક આખી આવી સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીની બુક્સ છે. તો આજની જે બુક્સ હતી તત્વમસી, મતલબ કે તત્વમ અસી, તે તું જ છે. એટલે બુકનું તો મને ટાઇટલ બહુ ગમતું હતું અને મેં એકરાર કરું તો ખરી વાત તો એવી છે કે મેં રેવા મૂવી પહેલા જોયું ને પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે આ એક બુક્સ ઉપરથી મૂવી બન્યું છે. તો તત્વમસી આપણે જે ઉપનિષદમાં વાંચેલું હતું કે તે અને તું, એ બંને વચ્ચેનો જે ભેદ મિટાવવાની જે આખી વાત છે અને હું એ સમજુ કે હું એ જ છું, એ જ પરમ બ્રહ્મ છું, ત્યાં સુધી પહોંચવાની જે યાત્રા છે એ જે છે એ તત્વમસી છે. તો આપણે બહુ લાંબુ નહીં ખેંચતા, ઓલરેડી 10 વાગી ગયા છે. તો નીતિનભાઈનો, સુરેન્દ્રસિંહનો, ડાભી સાહેબનો, અને ડાભી સાહેબે જે વાત કરી ને એ મને બહુ ગમી, કારણ કે રેવર સાહેબ ને એ બધા મિત્રો છે. તો એ લોકો જયારે સ્વાધ્યાયના કામ કરતા હતા તો આ રીતની મીટિંગો એ લોકો જાતે જ ઓર્ગેનાઇઝ કરતા હતા અને શિબિરો ઓર્ગેનાઇઝ કરતા હતા. તો આપણે તો જરૂર ઈચ્છીશું કે એ લોકો બધા સાથે ભેગા મળીને કોઈને કોઈ ટોપિક રિલેટેડ, જેમ કે તમે ભગવદ્ ગીતાનો લઈ લો કે પતંજલિ યોગ સૂત્રનો લઈ લો કે કોઈ સ્વાધ્યાયનો લઈ લો, કોઈ પણ ટોપિક્સ રિલેટેડ લઈ લો અને એના આધારે જ આપણે શિબિર કરીએ, ભેગા થઈએ, ડિસ્કશન કરીએ, ચર્ચા કરીએ, ધ્યાન કરીએ, તો વધારે મજા આવશે. સુરેન્દ્રસિંહજીને હેન્ડ ઓવર કરું છું. થેન્ક યુ. તમારું સજેશન ઓલરેડી ડાભી સાહેબ સાંભળે જ છે અને એમના ભાવ પરથી હું સમજી શકું છું કે એ કંઈક એમના મનમાં મનોમંથન ચાલી રહ્યું છે અને ટૂંક સમયમાં એ સાકાર સ્વરૂપે બહાર આવે. ચલો, થેન્ક યુ વેરી મચ. સૌથી પહેલા તો નીતિનભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર. નિરલસિંહ, તમારો ખૂબ આભાર. અને જે પણ જોઈન્ટ થયા છે મારા પુસ્તક પ્રેમી મિત્રો, એને હું દિલથી, હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આપને બધાને એક મેસેજ આપું છું કે આપ પણ ચાહો તો બુક રિવ્યુ આપી શકો છો. આ ઓપન ટુ ઓલ છે, કોઈના માટે બાદ નથી. મારા જેવા વ્યક્તિ આમાંથી ઘણું બધું શીખે છે. તો આ શીખવા માટેનું પણ એક પ્લેટફોર્મ છે. અહીંયા કોઈ સંપૂર્ણ નથી, આપણે બધા એક સરખા છીએ. કોઈ ભૂલો હશે તો એકબીજાને સપોર્ટ કરીને ઉપર ઉઠાવવાના છે અને એમ કરતા જીવનની યાત્રાને પૂરી કરવાની છે. ફરી એકવાર આપણી સાથે પુનિતભાઈ પટેલ જોડાયા છે. પુનિતભાઈ એ કદાચ લેફ્ટ થયા હશે. તો
ગઈ વખતની જે આપણી ટોક્સ હતી નીતિનભાઈએ જે આપેલી હતી એની પછી જબીનબેન જે આપણા જીએનએફસી વાળા ગ્રુપમાં પણ છે તેમણે અને પુનિતભાઈ પટેલ તેઓ પ્રોફેસર છે અને ડોક્ટર છે, તો એમણે પણ બુક રિવ્યુ આપવાનું કીધું છે. અને આજે સુરેન્દ્રથી તમે પણ કોઈ વાત કરતો તો ધીરે ધીરે આપણી એક સરસ એવી ટીમ મજાની બનતી જાય છે કે જે આ પ્રવૃત્તિ આપણી નિયમિતપણે ચાલુ રહે. જી જી ચોક્કસ ચોક્કસ. ચલિए બધાને ગુડ નાઇટ. ગુડ નાઇટ. હા બોલો સુભાષ રણજીતસિંહ શું? એકાદ અઠવાડિયું કે 10 દિવસે, આ તો 15 દિવસે, હા મહિનામાં 2 કરીએ તો ચાલે. મહિનામાં 2 કારણ કે રિચાર્જ કરવાનો જમાનો છે ભાઈ. મોબાઈલમાં રિચાર્જ ખૂટે એટલે કરવું જ પડે, અને વાહનોમાં પેટ્રોલ ડીઝલ બળતણ ખૂટે એટલે લેવા જવું પડે. એટલે જીવન જ્યારે જીવવા નીકળ્યા છે તો પછી હાશકારો જ્યાં મળતો હોય એ તો જેટલું આપણે અતિરેક પણ ના કરીએ, પણ એટલું ડિસ્ટન્સ ના થઈ જાય કે પછી ઓવેલા બૈલા મળ્યા અને બધાના ચહેરા ભૂલાઈ જાય. એટલે થોડું સાતત્યપૂર્ણ કરશું તો એક ભૂખ હવે ઉપડશે. જુઓ આજે બધા કેટલા 18, 23, 24, 27 સુધી 27 હતા. અને જો વેળાસર આપણે ડિક્લેર કરી શકીએ કે હવે નેક્સ્ટમાં આ તારીખે છે તો એક ભૂખ ઉપડશે આપણને આની પણ. અને જે બધું ખૂટે તો બધામાં જ છે ભાઈ, આપણે ક્યાં પરબ્રહ્મ થઈ ગયા છે, તો એની અંદરથી મળશે, ઘણું મળશે. ચોક્કસ. જરા ધ્યાન આપજો. અને સુરેન્દ્રસિંહ તો ઓલવેઝ રેડી હોય છે. थैंक यू वेरी मच. स्पेशली थैंक्स टू दिलीप सर एंड महाराज. महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया. दिलीप सर મહારાજ સાંજે આરતીમાં મળ્યા, મેં કીધું કે તમારે જોડાજો, મજા આવશે. નર્મદાનું હતું એટલે એમને જોડવા પડે. એક ભાઈઓ જોઈન થયા છે, ધર્મેશભાઈ છે. એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ બધાનો. ઓકે ચલો બધાને ગુડ નાઇટ. ચલો નર્મદે હર. આપની સર્વ મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરે એ જ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ અમારા તરફથી.